स्टूडेंट देखिए इनकम टैक्स में नेक्स्ट टॉपिक अर्न लीव सैलरी। स्टूडेंट जो इससे पहले हमने पेंशन के बारे में डिस्कस किया और ग्रेचुटी, उसके कुछ रूल्स दिए हुए थे और रूल्स हमें पढ़ने होंगे तभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। अर्न लीव सैलरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए। देखिए एनगेजमेंट ड्यूरिंग सर्विस, if an employee does not avail his earned leave and receives payment in respect of any period of leave not availed by him, while he continues to remain in service, it is taxable in full. B. Encashment after retirement. If an employee receives payment in respect of any leave not availed by him on retirement or recognition, resignation, it will be exempt from the following extent, जैसे कि फर्स्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेकंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखिए एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द कैश equivalent to the earned leave at his credit at the time of his retirement, whether as superannuation or otherwise, is fully exempt. Non-government employee, any payment as on cash encashment of earned leave received at from any other employer is exempt to the extent of the least of the following amounts. Such as first, maximum of 10 months salary on the basis of the average salary drawn by the employee during 10 months immediately preceding his retirement on superannuation. Second condition, amount of salary on the basis of average salary for the approved period for which earned leave has not been availed of. Third, maximum limit prescribed by the central government rupees 3 lakh. Number 4, amount actually received. Next, approved period of earned leave. Earned leave entitlement cannot exceed 30 days for the every year of actual service, with the employer who is paying the cash equivalent to earned leave. This is the approved period. सैलरी इंक्लूड्स, यानी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट, बेसिक सैलरी, DNS allowance if given under terms of employment. Third, commission based on upon a fixed percentage of turnover achieved by the employee. स्टूडेंट इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। DNS अलाउंस यदि सेवा की शर्तों के अनुसार है तो इसको इंक्लूड करेंगे। और स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, मिस्टर यादव वाज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी सिंस 1st 1986. He is covered under the Payment of Gratuity Act. He retired from service on 1st April 2018. 2019, his pay at the time of retirement was 80,000 per month. His annual increment of rupees 2,000 falls due on 1st April every year.
he was getting DNS allowance at 2000 rupees per month. For the last several years, he contributes 14% of basic pay to recognized provident fund, to which the company also contributes an equal amount. He was also getting house rent allowance at 10,000 rupees per month. Although he is living in his wife's house for which he does not pay any rent. The fair rental value of the house is 800 rupees per month. This house belonged to Mr. Yadav, but he had transferred it to his wife without adequate consideration. He received rupees 16 lakh for gratuity and 12 lakh from Provident Fund. He received rupees 3 lakh 20,000 pension during the financial year 2019 to 20. Assuming that Sally is due on the last day of the month, computes his taxable salary for the assessment year 2020 to 21. Student, इसलिए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ग्रेच्युटी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए वर्किंग नोट्स, ग्रेच्युटी के कुछ रूल्स मैं पहले बता चुका हूँ कि 15 डेज सैलरी, सेकंड कंडीशन मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, और थर्ड ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। तो देखिए द ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर यादव फॉल्स अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ही इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू द एग्जम्पशन फॉर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी मानी जाएगी। पहली की कंडीशन थी 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन, जो लास्ट आखिरी महीने में जो सैलरी मिल रही होगी। सेकंड 20 लाख, थर्ड है आपका ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। देखिए यहाँ पर सैलरी मीन्स इंक्लूडिंग DNS अलाउंस एंड नथिंग एल्स। फर्दर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ फॉर दिस पर्पस इज़ टू बी टेकन एज 26 डेज। क्यों? क्योंकि एक महीने में 26 दिन को वर्किंग डेज माना जाता है, इसलिए। हेंस 15 डेज सैलरी विल बी 15/26 ऑफ द मंथ सैलरी लास्ट ड्रॉन। देखिए स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन फिर देखिए। ये 1 अप्रैल 1987 से एम्प्लॉयड हैं, तो 1 अगस्त 2019 तक कम्प्लीटली इनके 32 ईयर्स बैठेंगे। ये चीज़ है 1987 से 2019 तक। अब देखिए इसमें जो हम ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ही हैज़ रिसीव्ड पूरे 32 ईयर्स बैठेंगे एंड 4 मंथ्स बैठेंगे, 32 साल 4 महीने। सो हिज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस विल बी 32 ईयर्स, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड में यदि 6 मंथ या उससे ज़्यादा दे रखें तो पूरा उसको 1 ईयर मान लिया जाता है। यदि यहाँ पर 6 मंथ होते या 7 मंथ तो यहाँ पर 33 ईयर्स आते। और नॉट कवर्ड में चाहे कितने भी महीने दे रखे हो, चाहे 11 महीने दे रखे हो, 11 महीने, उनको पूरा 1 ईयर नहीं माना जाता है। तो ये ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड में है, पूरे कम्प्लीटली इनके 32 ईयर्स बैठते हैं। तो पहली कंडीशन देखिए 80,000, यानी कि इनके लिए 80,000 सैलरी मिल रही है और इनका 2,000 एनुअल इंक्रीमेंट है, तो 82,000 हो गए। 82,000 इंटू 15 यानी कि 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई 32/26, या पहले इसका 15 डेज सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद 32 दिन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा स्टूडेंट ये 15,13,846 रुपीज़, 15,13,846। स्टूडेंट सेकंड इसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम लिमिट देखिए 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख है स्टूडेंट। बीस लाख मैक्सिमम लिमिट है इसकी, और एक्चुअल जो रिसीव हो रही है ग्रेचुटी वो है आपकी 16 लाख, एंड ही रिसीव्ड 16 लाख फॉर ग्रेचुटी, तो 16 लाख। अब देखिए 15,13,846 और ये 20 लाख और ये 16 लाख, इन तीनों में सबसे कम यानी कि ये 15,13,846। तो टैक्सेबल ग्रेचुटी का फॉर्मूला है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड ग्रेचुटी। तो रिसीव्ड कितनी हो रही है 16 लाख, और एग्जम्प्ट ग्रेचुटी कितनी है 15,13,846। टैक्सेबल कितना बचा 86,154 रुपीज़, 86,154। इसके बाद देखिए प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। देखिए सैलरी मिल रही है 80,000 रुपीज़ पर मंथ। अब ये 4 कैसे, देखिए इनका जो रिटायर हुए हैं ये 1 अगस्त को, तो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, इसलिए कम्प्लीटली 4 महीने की इनको सैलरी मिलती है, और ये 1 अगस्त को रिटायर हो जाते हैं। 80,000 इंटू 4 3,20,000। तो DNS अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो DNS अलाउंस भी स्टूडेंट 4 महीने के मिलेगा यानी 8,000। पेंशन क्वेश्चन में दे रखी है 3,20,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इन एक्सेस ऑफ 12% यानी 14% दे रखा है, 14 दे रखा है, और एग्जाम कितने तक है 12 तक, यानी 2% कैलकुलेट कर देंगे इसका, 3,20,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे आएगा 6,400। हाउस रेंट अलाउंस फॉर, ये भी 4 मंथ्स के लिए मिला है, ये आपका 40,000। हाउस रेंट अलाउंस मिला है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 4 ये 40,000। ग्रेचुटी अभी हमने कैलकुलेट की है, नेट टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी बैठती है 86,154। इन सबको ऐड किया, ये आती है ग्रॉस सैलरी 7,80,554 रुपीज़, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस को माइनस किया यानी 40,000 को माइनस करने के बाद 7,40,554 रुपीज़, 7,40,554। ये स्टूडेंट्स का आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।